8 people have died and more than 100 have fallen ill after consuming contaminated drinking water in Indore, India's cleanest city, triggering panic in the Bhagirathpura area. The deaths were reported between December 25th and 30th, with health authorities rushing to respond as cases of severe illness surged over the past week. Chief Minister Mohan Yadav has taken cognizance of the incident and has directed officials to ensure proper medical treatment and conduct a thorough investigation into the source of contamination. Preliminary findings suggest the contamination may have been caused by leakage into water pipelines due to ongoing excavation work or polluted water in an overhead tank. For more on this, we have Mithilesh Gupta with us. Thank you so much for joining us. Of course, ये कह रहे हैं कि या तो ये कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है या तो ये किसी तरह की पाइपलाइन लीक की वजह से हो सकता है. क्या अभी तक कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली है? देखिए, भागीरथपुरा में 8 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है. दूषित पानी पीने से, गंदा पानी पीने से 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 1000 से ज़्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत का मामला सामने आया, यानी 1000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए. लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं. इस वक्त हम भागीरथपुरा में मौजूद हैं और वो लीकेज मिल चुका है जिसके वजह से लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुँचा, संक्रमण वाला पानी पहुँचा. ये तस्वीर है इंदौर के भागीरथपुरा चौकी के ठीक पीछे. और ये इस वक्त अगर जो तस्वीर आप All right, so this is the information that we're getting right now, that this contamination could have happened due to a leak which poured into the water pipelines due to ongoing excavation work. There, Mithilesh also getting us these visuals from the area there, Bhagirathpura. So these are only the preliminary findings which suggest that the contamination may have been caused by a leak into water pipelines due to this ongoing excavation work that we'll try and get you more visuals of as well. So this is the reason for the water here being contaminated, the result of which 8 people have died and more than 100 have fallen ill after they consumed this contaminated drinking water in Indore. The deaths were reported between the 25th of December to the 30th. Health authorities are rushing to respond to cases of severe illness which have surged over the past week. Now, after reports of contaminated water in Bhagirathpura, Indore, News 18 is investigating the possible causes of the incident. Residents claim that in several areas here, the Narmada water line crosses drainage lines, raising the possibility that drainage water may have entered these pipelines and must have reached the homes in the area, causing the contamination. Take a look at this. न्यूज़ 18 की टीम भागीरथपुरा इलाके के उस गली में पहुंची जहां पर गंदे पानी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए. ये गली वही है, कई सारे लोग बीमार हैं और इसी गली की एक महिला की जान भी जा चुकी. उनका नाम है उर्मिला यादव. न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल किया कि आखिर क्या वजह है कि नर्मदा का पानी दूषित हो गया. तो चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं. इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो नीचे ड्रेनेज है. ये ड्रेनेज चैम्बर जो है वो तस्वीर आप देख रहे हो. नीचे गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज से वो गंदा पानी बह रहा है और उसके अगर ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको और पाइपलाइन नज़र आ रहा है. ये पाइपलाइन नर्मदा का पाइपलाइन है और इसी से लोगों के घरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है. और शायद ये वही कारण है जिसके वजह से लोगों के घरों तक ये दूषित पानी पहुंचा और लोग बीमार हुए. एक और भी बात सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले भागीरथपुरा इलाके में ड्रेनेज के लिए खुदाई की गई है और उस खुदाई के साथ में जहाँ पर वो ड्रेनेज लाइन डाली गई है, ठीक उसी के नीचे नर्मदा की पाइपलाइन भी है. दूसरा कारण ये भी है, उसकी वजह से ही पानी दूषित हो सकता है. डॉक्टर ये हमारे साथ मौजूद हैं. हालांकि आज भागीरथपुरा में 22 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है. पैरामेडिकल पूरा जो अमला है वो भागीरथपुरा में मौजूद है. घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है. अगर किसी की तबीयत खराब है, उल्टी दस्त की शिकायत, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है. डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहुँचे, कई सारे बच्चों को आपने चेक भी किया, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है. सबसे पहले तो ये बताइए कि उन्हें क्या दवाई दी जा रही है और कितने ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले? हाँ, बच्चों में प्रायतः हमें दस्त दिखे गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है और कुछ बच्चों को उल्टी की भी समस्या है, जिसके लिए हमने जिंक की दवा दी है, एक ORS का घोल दिया है और उन्हें हमें उल्टी की हमने दवा दी है जैसे ओंडेन सिंड्रोम जो हो गई है. उस सब हमने देखा कि एज ग्रुप देखें तो जो हमारा 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे पीड़ित हैं दस्त के माँ. और उसका मुख्यतः कारण जो आपने बताया है, जो पानी की सप्लाई का जो है पाइप और हमारा जो दूषित जो जा रहा है नाले का, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, उसके कारण ऐसा हो सकता है.
भागीरथपुरा में हेल्थ कैंप लगा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है वो तत्काल यहाँ पर आए, उन्हें प्राथमिक उपचार तत्काल मिल सके, इसलिए यहाँ पर हेल्थ कैंप लगा दिया गया। सर, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उल्टी दस्त की समस्या लेकर के, उनको दस्त रोकने की दवाई, उल्टी रोकने की दवाई दी जा रही है। ORS के पैकेट दिए जा रहे हैं और उनकी स्थिति जानते हुए कि उनको कैसी स्थिति, अगर उनकी स्थिति खराब है तो उनको हायर सेंटर, MY या सुपर स्पेशलिटी भेजा जा रहा है। उसके लिए बाकायदा यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी है। बाकायदा एम्बुलेंस 2 खड़ी भी हैं, तो वो इनको लेके ट्रांसपोर्ट कर रहे क्या हैं। आज सुबह से किसी मरीजों को आप लोगों ने यहाँ से एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा? अभी तक इस तरीके को कोई मरीज नहीं आए हैं कि मतलब उनको एम्बुलेंस से रेफर करना पड़े, पर जितने आए थे वो इस कंडीशन में थे कि खुद ही जा सकते थे। वो जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या शिकायत लेकर आ रहे हैं? उल्टी दस्त की शिकायत लेके आ रहे हैं कि 2 से 3 दिन से हमको ये समस्या आ रही है, तो उसके लिए उपचार उनको दिया जा रहा है। यानी वो डायरिया जैसे जो लक्षण होते हैं, दस्त, पानी जैसे दस्त हो रहा है। जी। तो सर क्या एहतियात रखें यहाँ के लोग, उन्हें क्या जैसे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बोला है कि जो नगर निगम ने टैंकर का सप्लाई कर दिया है, तो जो पानी आ रहा है उसको उबाल के पीना है उनको। All right, for more on this, let's just go back to मिथिलेश। मिथिलेश जी, आप पहले हमें वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे, ऑफ कोर्स हमने ये रिपोर्ट भी देखी है जिसमें आपने दिखाया है कि कैसे वो जो ड्रेनेज का पानी है उसकी लीक की वजह से ये हो सकता है, उनके ऊपर ही ये पाइपलाइंस जो हैं, आप क्या बता सकते हैं अभी हमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से पूरी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू हुई है, 2-3 चीजें सामने आई। एक तो जो सीवरेज का चेंबर है उसके गंदे पानी के बीच से ही नर्मदा का पाइपलाइन है, यानी गंदा पानी और पीने का पानी दोनों की पाइपलाइन एक ही जगह, दोनों पानी एक साथ बह रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि दोनों जो लाइन है, गंदे पानी का और साफ पानी का पाइपलाइन का भी एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर गंदे पानी के साथ ये साफ पाइपलाइन होगी तो उसमें संक्रमण जरूर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा एक लीकेज मिला है जो भागीरथपुरा पानी टंकी के ठीक पास में मिला है, और जब लीकेज मिला तो ठीक उसी के ऊपर भागीरथपुरा चौकी का टॉयलेट बना हुआ था और टॉयलेट का पूरा गंदा पानी नीचे की तरफ गिर रहा था, और जहां पर ये टॉयलेट का गंदा पानी नीचे गिर रहा था वहीं पर नर्मदा की जो मेन लाइन है वहां पर लीकेज था, और ये माना जा रहा है कि उसी लीकेज की वजह से संक्रमण वाला ये जो गंदा पानी है लोगों के घरों तक पहुंच गया, क्योंकि पूरा वार्ड प्रभावित हुआ। किसी एक गली में गंदा पानी नहीं पहुंचा है, पूरा जो भागीरथपुरा वार्ड है वो पूरे वार्ड में गंदा पानी पहुंचा है। 1000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, और 8 लोगों की अब तक दूषित पानी पीने की वजह से जान जा चुकी है। तो अभी ये माना जा रहा है कि संभवतः ये वही लीकेज है जिसकी वजह से लोग बीमार हुए। लीकेज मिल चुका है, लेकिन आगे भी और भी जो दूसरी लाइन है उसे चेक किया जा रहा है, दूसरे भी चेंबर ओपन कराए जा रहे हैं, वहां भी जांच चल रही है कहीं और भी कोई लीकेज तो नहीं है। लेकिन एक बड़ा लीकेज सामने आया। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, जो पाइपलाइन में लीकेज मिला है इसके लिए 1 साल पहले टेंडर निकाला गया था। शायद 1 साल पहले जब टेंडर निकाला गया था उस वक्त नई पाइपलाइन डाल दी गई होती तो आज बेगुनाह लोगों की जान बच जाती, बेगुनाह लोगों की जान नहीं जाती। एक्शन लेने की बात कही जा रही, कार्रवाई की बात कही जा रही, लेकिन अब तक दूषित पानी पीने से देश के सबसे स्वच्छ शहर में 8 लोगों की जान जा चुकी है, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, और लगातार मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। उसे देखते हुए 100 बेड का एक वार्ड बनाया गया अरविंदो हॉस्पिटल में, 100 बेड का एक अलग वार्ड तैयार किया गया, क्योंकि लगातार भागीरथपुरा में जो है अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। हाहाकार मचा हुआ, चीख पुकार तक मची हुई है, क्योंकि अब लोगों की जान जा चुकी। हर घर में लोग बीमार है, हर घर में से ये तस्वीर सामने आ रही है कि उनके परिवार के लोग गंदा पानी पीने से इस वक्त बीमार हो रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त भागीरथपुरा में मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। बच्चों के लिए 22 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम नियुक्त की गई है, 22 बच्चों के डॉक्टर इस वक्त भागीरथपुरा में मौजूद है। जी, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स हम सारी डेवलपमेंट से ट्रैक करते रहेंगे ना। आफ्टर द इंदौर वाटर ट्रेजेडी दैट